एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਰੰਜਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸੀਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਐਸਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1924 ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਸਡੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ FA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਬਰਮਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਨ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 10-12 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਨ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਪ ਜੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਡਲਸ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4 ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1986 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 68 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
बोल
उपरंत परमात्मा जी के चरनां विच अरदास बेनती करके पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा भी सरवण किया गया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पहला घर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उजल के ना जगना घोटम गालड़ी मस धोतिया झूठ ना उतरे जिसो धोना तिस उजल के ना जगना घोटम गालड़ी मस धोतिया झूठ ना उतरे जिसो धोवा तिस सजन सी नाल मैं चलदिया नाल चलन जिथे लिखा मंगिए इथे खड़े दे सन रवाओ कोठे मंडप माड़िया पासों जितविया टठिया कम ना बनी बिचों सखनिया बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मद वसन घुट घुट जिया खावणे बगे ना कहियन सिमर लोक शरीर में मैं जन देख बुलन से फल कामन आवणी ते गुण में तन मन अंधले पार उठाया डूगर बाट बहुत अखी लोड़ी नालवा और चढ़ लंगा कित क्या करिया चंगियाइया अगर सियाणप कित नानक नाम संभाल तू बदा सुते जत क्या करिया चंगियाइया अगर सियाणप कित नानक नाम संभाल तू बदा सुते जत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब सरदार करतार सिंह जी उपर जो कि सानू पिछले दिन विछोड़ा दे गए उन्होंने अंतिम अरदास में शामिल होने इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जीवन बारे आप सब चंगी तरह जानते हो, पर फिर भी मैं 2 मिनट उन्होंने जो जीवन वृतांत उन्होंने जी लंबी आयु भोगी ਉਹਦਾ ਰਾਜ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਬੋ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ और लगभग 5-6 साल की उम्र में जो पंजाब आए उत्थे उन्होंने पिता जी साढ़े दादा जी सरदार मथा सिंह जी उपर जो कि एसडीओ सन उत्थे इरीगेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते सी। जदों 5-6 साल की उम्र में इतने पिंड आए, इतने आके उन्होंने प्राइमरी की, फिर कमालपुर स्कूल तो उन्होंने दिनों 8वीं पास की जो कि जिले में फर्स्ट क्लास से उन्होंने पास की सी। उस तो उपरंत रैकोट कालीगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब उतों 9वीं और 10वीं की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना जितों उन्होंने FA पास की। उन्होंने दिनों पढ़ाइयाँ दूर दूर होने करके इन्हों फिर भी मायक सहायता या इन्हों का परिवार इन्हों पूरी उत्साह करता सी कि चारे भारा गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना पढ़े और उन्होंने दिनों इन्होंने कोल अच्छे साधन सन जिदे करके इन्होंने FA पास की। उपरंत उतों गिरफ्त श्रीनगर 4 साल नौकरी करने उपरंत वो नौकरी छड़ दी गई। फिर कलकत्ते ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इन्होंने जॉब की, उतों फिर मोदी नगर जॉब करते रहे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इन्हों का काफ़ी रुझान सीगा, संबंधित
जिस तरह साढ़े ताई बड़े लंबड़दार उन्होंने भी उन्होंने दिनों में देहरादून जाके बसा पाई सी। इस तरह इन्हों का भी मन सीगा कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट बनाइए, पर हालात कई दफा उदों साथ नहीं होते। फिर इन्होंने मोदी नगर काफ़ी टाइम काम किया। अखीर चंडीगढ़ क्योंकि घरेलू जिम्मेवारियां बढ़ती जांदियां ने, परिवार के उन्होंने देखते हुए इन्होंने चंडीगढ़ जॉब ज्वाइन की। इन्होंने दोनों बेटे जो कि पढ़ लिखे और 5 बेटियां आज की डेट में अमेरिका के सैटल ने। परिवार अपनी थां से बहुत खुश और वधिया तरीके चल रहा। इन्होंने 1999 में अमेरिका 1.5-2 साल लाए, उपरंत वापस पंजाब आ गए और इतने आके इन्हों का एक अभियान बनया भी असी अपने शरीर को फिट रखते हुए उन्होंने मास्टर एथलेटिक गेम्स इन्होंने काफ़ी भाग लिया, जिस इन्होंने लगभग 60 गोल्ड मैडल जिते, जो कि अपने पिंड का भी नाम रोशन होया, जिले का नाम रोशन होया। उस संबंध में पंजाब एथलैटिक मास्टर एथलैटिक एसोसीएशन के प्रधान सरदार निर्मल सिंह जी गरेवाल, जो कि अज उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करना है, उन्होंने सैकटरी रजिंदर सिंह जी वो भी इतने पहुंचे हैं। संधू साहब उन्होंने 2 मिनट संगत साझे करते हैं। ये ही जो मैं अगे उन्होंने व्याख्या करना जीवन बारे, इन्हों का ध्यान धार्मिक होने के नाते नाते इन्होंने अकाली लहर में हिस्सा लिया। वो जो पंजाब मोर्चा चलता सीगा, उस टाइम पंजाब के अकाली दल के पहले क्रिकेटर सरदार जो उन्होंने दिनों में खड़क सिंह होते सन, उन्होंने बहुत नेड़े संबंध सन। एक दफा इतने सारे पिंड भी आए, घरे भी रहे। उस तो प्रभावित होकर इन्होंने जैतो मोर्चे में हिस्सा लिया, पर कुछ लोगों को नहीं चंगियां लगदियां, उस करके इन्हों का कुछ इन्हों अपने जीवन को ठल देनी पई। उस उपरंत इन्होंने फिर गेमां वाल ध्यान दिता, जो कि गेमां के चंगा इन्होंने नाम पाया। साडे पंजाब एसोसीएशन जो मास्टर एथलीट भी है, उन्होंने सरदार रजिंदर सिंह जी बैठे हैं, जो कि 2 मिनट साझे करेंगे। और उन्होंने इन्होंने लगभग 20 साल समा कट्ठे एथलैटिक की। सरदार निर्मल सिंह जी जो कि गरेवाल साहब प्रधान ने, एशियन गेमां के गोल्ड मैडलिस्ट ने, वो भी अज उन्होंने शब्द के फुल भेंट कर पहुंचे ने। हुण मैं बेनती करूँगा 2 मिनट लिए संधू साहब उन्होंने संबंध में आए होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। जिस तरह किसी शायर ने लिखा है, लाई हयात आए कजा ले चली चले, ना अपनी रजा से आए ना अपनी रजा जाए। आदमी संसार के आता है, जी जिंदगी आ लै आती है, मौत लै जाती है। वो मर्जी नहीं होती, ना होगी तो ना जाती। मैं हम गल करूँगा, मैं इन्होंने छोटे नाम लैके बुलावा, चाचा जी कहना। इन्हों का 2000 के मेरे नाल बात होया, असी भोपाल गए। ये 3 इवेंट करते होंगे थे, डिस्कस थ्रो, गोला सिखते थे और जैवलिन सिखते थे। ये तिनों के करीबन अपने उम्र के वर्ग के पिछों 5-5 साल के डिफरेंस के एज ग्रुप बनाते होंगे सी, जब 45 तो 50, 50 तो 55, 55 इस तरह। ये क्योंकि बड़े ग्रुप थे सी, तो इन्होंने तिनों ही गोल्ड मैडल होते थे। मेरे याद है अभी भोपाल एक सराम के साडा डेरा सानू संभाया हुआ सी, मेरे नाल ही रिश्तेदार का सी। इन्हों को एक छोटी जी पीपी पई, मैं कहना चाचा जी की है, कहते चुप कर दसी ना हो। मैं किया कहते बलीगी लैन मैं रला के आप खाया करा, नहीं कहते बाकी गल पक जानी। जब भी उन्होंने थोड़ा देर तो मैंने कहते ठीक खानी, मैं कट लूँ। सो उतो साड़ी नेड़ता की हौली हौली बहुत बुनी गई। हर साल मैं बुलाता जो मेरी मीट होती थी और बड़ा मजा मारते थे।
कोई करीबन 25 साल का लगभग साਡਾ बाद है। बड़े हंसते खेलते रहते थे, बड़े मिजाज खुश मिजाज में सुभाव के बंदे थे। सो आप हम मैडम देख के मैंने बड़ी खुशी होती है कि मैडम का ढेर लगे मैडम की सारी उम्र की कमाई है, बाकी कमाई की यादगार छड़ के दे। जिस तरह जो गुरबाणी के आता है कि भूखे पास नरकों की नी ते दुख पछानी नानक लीन पयो गोबिंद से जो पानी सकता। 10 गुरु महाराज के श्लोक शब्द ने। सो पानी के पानी मिल जाता जब वो लीन हो गए प्रभु के पीछे, प्रभु नाल एक हो गए। इस पानी संसार छड़ के वो चले गए हैं। सानू सिर्फ जिस तरह किसी शहर में लिखा है, जाने वाले कभी नहीं आते लेकिन उनकी याद आती। सानू याद जरूर आती रहो। और एक होर बड़ी खुशखबरी की गल है कि साढ़े रिजल्ट एसोसीएशन जिले लुधियाने के सब तो बुजुर्ग उम्र के पूरे हुए करीबन 94 साल की उम्र के बिल्कुल सर्टिफिकेट गया ना 26 का बर्थ थी। तो सब तो बड़ी उम्र के हम तक बहुत गए थे, क्योंकि जिस तरह एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत लिखा नजारा कमर बांधे हुए यहाँ से भी याद बैठे हैं, बहुत लिख रहे हैं आगे, बाकी सब तैयार बैठे हैं। ऐ नगन में बाबे बहारी का लाल रबड़ी तुझे डेलियां सूझे इधर हम तैयार बैठे हैं। चला सब नहीं जाना कमर कैसे हम सब नहीं करे हुए थे, बच्चे तो बुढ़े तक हाथी के नहीं जाना, पर बंदा वो है जो कुछ करके अपनी पैर साफ छड़ के अपना नाम बना के या लोगों के ज्यादा मोह प्यार कायम करके जाता असली जीवन वो है। बाकी जी धन दौलत वो इतनी रह जानी है, ये मोह प्यार कमाया ये बंदे की कमाई है, ये सारी उन्होंने याद रखूगी। सो मेरी एसोसीएशन वालों परमात्मा के अरदास है कि उन्होंने गुरु आपके चरणों में निवास बख्शन और पिछले परिवार जो आपका बंदे बंदे इन्हें सब कहना होगा कि हमारा जातिका वाकई उन्होंने जो काम किया तन मन किया और वधिया ढंग करके आपका जीवन सारा गुजारिया। परिवार वालों जो भी अपने इतने परमान के सज्जन पहुंचे ने रिश्तेदार पहुंचे हैं, दूरों नेड़े करके होर भी सारे पहुंचे हैं, खास करके सारे गुरुद्वारा साहब अमन पाठ तो पूरी कमेटी मैंबर पहुंचे हैं। इस तरह ये मास्टर भी गेम्स वाले अपनी टीम लेके पहुंचे हैं। इस तरह सरपंच साहब ने दसिया कि कलोनी साहब ने आना सी पर उन्होंने कुछ कई लोग प्रॉब्लम करके नहीं आ सके। होर भी जिन्हें माई भाई पहुंचे हैं सारे का परिवार को धन्यवाद किया जाता। सारे ने अपनी शब्द प्रकट किए हैं। जिस तरह के गुरुद्वारा साहब कमेटी का प्रबंध है कि प्रसाद बाहर ही बताया जाएगा और उपरंत गुरु के लंगर ज्ञापन सारे ने लंगर छक के जाना। परिवार वालों कुछ माया गुरुद्वारा साहब की और बाकी अपने धार्मिक स्थानों पर भेजी गई है। वो इस तरह गुरुद्वारा साहब सतनाम साहब इतने इसी 40,000 रुपया दिता गया और अंदरले गुरुद्वारे 10,000 रुपया, दूसरे शहीदा वाले गुरुद्वारे जो एम्बुलेंस है वो 10,000 रुपये दिए गए हैं। बाकी अपने रामदासियों के गुरुद्वारे जो हैं उत्थे 10,000 5,000 और विश्वकर्मा मंदिर के 5,000। इसी तरह 2 मंदिर हैं उन्होंने 2100 रुपया और मसीत ने 2100 रुपया एक परिवार वालों सरदार करतार सिंह जी उपर उन्होंने लगे एक फिटा दी गई है उन्होंने याद में। इस सारे का द्वारा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।